lecture of English, and I wish you all the best. To start, we'll begin today, and today we are going to study a very interesting poem, very nice poem, very motivational poem, A Time to Believe. Now you have completed your 7th standard and now you have come in 8th standard. So you have to study a little bit hard in English, and they are very interesting lesson. Today we are going to do the first poem, A Time to Believe by B.J. Mavitais. Now in this poem, I will tell you that it's a very nice poem which is practically of our life. Believe in yourself, be confident. This is a poem which gives motivation. This is a poem which gives us motivation, self-confidence, and whenever we face any problems, we have to overcome it, how to overcome it, how we have to keep ourselves happy. Even if we face any problems, if we don't have anything which we deserve or something which we want, which we need, and we do not have it, but still how we can create the happiness in that situation, how we can be happy in all the situation. Very motivational poem. So let us start this poem, A Time to Believe. Okay, A Time to Believe, your poem. Just refer to your textbook. Whenever we start with English lecture, you have to be ready with your English textbook. Okay, come on, start, students. A Time to Believe. To believe is to know that every day is a new beginning. It is to trust that miracles happen and dreams really do come true. To believe is to see angels dancing among the clouds, to know the wonder of a starless sky and the wisdom of the man in the moon. To believe is to know the value of a nurturing heart, the innocence of a child's eyes, and the beauty of an aging hand, for it is through their teachings we learn to love. To believe is to find the strength and courage that lies within us when it is time to pick up the pieces and begin again. To believe is to know we are never alone, that life is a gift and this is our time to cherish it. To believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen, and all our hopes and dreams are within reach if only we believe. By B.J. Mavitais. Now I have read the full poem. Now one paragraph I will explain your first 2 lines. To believe is to know that every day is a new beginning. We have to always believe that every day it's a new beginning. हर दिन एक नया होता है, एक नया सवेरा होता है, नए दिन की शुरुआत हमको बहुत ही एनर्जेटिकली करना है, बहुत ही खुशी से करना है. With very big happiness we have to start our day. Early morning we start our day and हम लोग देखो विश करते हैं सबको कि हैव अ नाइस डे, सो दैट हमारे पूरा एटमॉस्फेयर हमको एक हैप्पीनेस दे. So even though if we have any problems, we have to start. Now the poet is saying that every day is a new beginning. वो ये बोल रहे पोएट कि हमारा हर दिन जो है वो एक हमारी नई शुरुआत है. हर दिन की शुरुआत नहीं है. Why? Because we learn every day. New things. हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं. हर दिन हमारे लिए एक नया सवेरा होता है, नया दिन होता है, नई चीजें स्टडी करने की होती है, नया थिंकिंग होता है. हर दिन हर एक पल नया होता है, बिकॉज जो दिन बीतता है वो हमारे लाइफ में वापस नहीं आता है. द डे टुडे व्हाट वी आर स्पेंडिंग, यू एंड मी, वी आर स्टडीइंग नाउ and we are not going to face this day again. बट इसके लिए मैं और तुम मिलके बहुत ही अच्छे से आज नया स्टडी करेंगे, कुछ नई पोएम पढ़ेंगे. जो पोएट बोल रहा है कि इट्स अ न्यू बिगिनिंग, बहुत ही अच्छी शुरुआत हो. हर दिन एक नई शुरुआत होती है. सो यू हैव टू ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ. टू बिलीव इज टू नो. हम अपने आप में ये सोचना है कि हम खुश हैं, हम हर चीज कर सकते हैं. वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वी आर कॉन्फिडेंट.
एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग, हर दिन हमारा नया दिन होता है और वो नए दिन की शुरुआत हमको बहुत ही अच्छी से करनी है. It is to trust that miracles happen and dreams really do come true. The poet is saying miracles happen. Miracles मतलब चमत्कार होते हैं, सही में होते हैं. कभी कभी you think that whatever you don't deserve and whatever you have dreamt of, और वो चीज़ तुम्हारे सामने आ जाती है, वो चीज़ें तुमको मिल जाती है. दैट इज मिरेकल ओनली. कुछ मिरेकल हो जाता है, कुछ मैजिक हो जाता है कि हाँ अरे मैंने ये सोचा था और आज मेरे सामने मिल गया. कभी कुछ अच्छा खाने का सोचेंगे और किसी न किसी तरीके से वो तुमको मिल जाएगा. इट्स you have not worked for it but you got it. It's really miracles. So the poet is saying that in our life also miracles happen. ऐसा मत सोचो कि ये मेरी लाइफ में कभी होगा, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, ये मेरे साथ मैं कैसे बन सकता हूँ, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, ये मुझे कैसे मिल सकता है. ये थिंकिंग निकाल दो, क्योंकि the poet is saying miracles also happen. miracles कैसे भी हो सकते हैं. हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि किसी की लाइफ में देखो विद इन सेकेंड्स या विद इन अ मिनट द पर्सन बिकम्स समथिंग बिग स्टार और मल्टी मिलियनियर. हम बोल नहीं सकते. इसके लिए पोएट इज सेइंग बिलीव इन योरसेल्फ दैट इट्स अ न्यू बिगिनिंग एंड इट मिरेकल्स आल्सो कैन हैपन टू यू एंड द ड्रीम्स आल्सो विल कम ट्रू. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम जो सपने सोचते हैं, हम जो सपने देखते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और फिर एक सेकंड में ऐसा सोचते हैं कि अरे मैं कैसे बन सकता हूँ, मेरा तो ऐसा है, मेरा तो वैसा है. तो इस द पोएट इज सेइंग कि ये थिंकिंग को हटा दो. मिरेकल्स हैपन एंड द ड्रीम्स कैन आल्सो कम ट्रू. हमारे सपने सच होंगे. और कब होंगे? जब हम अपने आप में बिलीव करेंगे. बिलीव इन योरसेल्फ. हम अपने आप में कॉन्फिडेंस रखेंगे. हम अपने आप में सोचेंगे कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, या मैं आगे चल के ये करूँगा, मेरे में ये हिम्मत है, मैं कर दिखाऊंगा. तो ये जज्बा रखना है, ये स्पिरिट रखना है हमारे थिंकिंग में, हमारे माइंड में. सो द पोएट इज सेइंग दैट we should always feel that everything good will happen. We have to start our day, a new day. Every day is a new beginning. Second thing, he says miracles happen. हमारे साथ भी चमत्कार हो सकता है. कभी कभी हम जो सोचते नहीं है वो हमारे लिए हो जाता है. तो that is miracle. और the poet says that our dreams also come true. हम जो भी जितने भी ऊंचाई के सपने हो, वो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे हमारा तो ऐसा है तो हमारे सपने कौन से पूरे होंगे, हम कैसे वो अचीव कर सकते. नहीं, मिरेकल्स हो सकते हैं और सपने भी पूरे एक दिन हो सकते हैं. अगर हम अपने आप में मान ले, ठान ले, हम अपने आप में वो जज्बा रखे, अपने आप में वो कॉन्फिडेंट रखे कि हाँ मेरे सपने पूरे होंगे. तो यही स्पिरिट तुमको रखना है. सो चिल्ड्रन, you have to keep your confidence very strong determination and believe in yourself that your dreams, my dreams, everybody's dreams will come true. Okay, the poet is telling in first stanza, in first paragraph, that every day is a new beginning because we learn new things every day, some new experiences every day, and miracles happen. Miracles can happen to us, to you, anyone, and you will feel that your dreams can also come true. हमारे भी सपने पूरे होंगे. So the poet is trying to tell us about it. Second paragraph. To believe is to see angels. Angels मतलब जो फरिश्ते हैं, जो हम angels बोलते हैं, जो sky में रहते हैं. Dancing among the clouds. To know the wonder of a stardust sky and the wisdom of the man in the moon. Now what the poet is saying is it is to believe that angels dance in the sky. मतलब एक सपना होता है कि हम सपनों में इमेजिनरी वर्ल्ड में लेके जा रहे हैं पोएट, और इमेजिनेशन करने बोल रहे हैं कि किस तरीके से एंजल्स क्लाउड्स में, स्काई में डांस कर रहे हैं. कितना खुशी है, कितना खुश है. सो हैप्पी दे आर.
So हम कभी भी देखो सपने में देखते हैं कि like कि the dream world is like very beautiful, all angels coming and dancing and all. So he takes into a imaginary world for us and he says that just think that how the angels are dancing in the clouds. किस तरीके से वो खुशी से मग्न है, बहुत खुशी में झूल रहे हैं, खुशी में अपनी मस्ती में है। तो वैसे ही हमारी जिंदगी में भी खुशियाँ आ सकती है, हम अगर अपने आप में बिलीव करेंगे तो, अपने आप में स्ट्रांग रहेंगे तो। The second he says, to believe is to see angels dancing in the clouds, to know the wonder of stardust sky and the wisdom of the man in the moon. It is like कि मून की कहानियां बहुत सारी है ना, मून की कहानियां बहुत सारी है। चंदा मामा सब बच्चों के मामा है, एंड वी हैव सीन सो मेनी सॉन्ग्स, है ना, चंदा मामा की स्टोरीज, चांद की स्टोरीज, and we call our babies also Chand and all, and we have seen so many stories belong to moon. Okay, यहाँ पे भी the poet is telling about the stories of a moon, so many different stories. और ये बोलते कि एक मैन ने यही सोचा था कि मून में उसको बहुत कुछ चीजें नजर आती है जो वो अचीव कर सकता है, मून पे जा सकता है। मून के जो स्टोरीज है कि एक मैन ने कहा था कि मून यू कैन ब्रिंग द मून, इसके लिए ही से दैट कि स्काई इज द लिमिट। हमारे सक्सेस, हमारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए इन कहानियां भी हमारे लाइफ में मिरेकल्स कर सकती है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि अरे सरप्राइजिंगली बोलते हैं अरे उसकी लाइफ में ऐसा हो गया, अरे उसकी यू मस्ट हैव नो दैट कि वन बैगर, फीमेल बैगर, शी बिकेम ओवरनाइट सिंगर, उसकी जिंदगी कैसे बदल गई, है ना, वो मिरेकल हो गया उसके साथ। यू मस्ट हैव सीन इन द न्यूज़ एंड ऑल, उसके साथ मिरेकल हो गया और वो पूरे एक रात में सिंगर बन गई, स्टार बन गई। तो यही मिरेकल्स है। तो हमारी लाइफ में भी ये मिरेकल्स हो सकते हैं, हमारे ड्रीम्स भी पूरे हो सकते हैं। तो ये सब जो चंदा मामा की या मून के जो पूरे आसमान में शाइन होता है, सबको मूनलाइट देता है, ये भी हमारे लाइफ में ला सकता है। उसकी जो कहानियां होती है ना, वो कहानियां भी हकीकत बन सकती है। सो ही इज जस्ट टेकिंग अस इन द इमेजिनरी वर्ल्ड एंड ही सेज दैट in any situation we have to be happy. किसी भी हालत में हमको भले ही कितने भी प्रॉब्लम्स हो, हमको खुश रहना है। थर्ड पैराग्राफ, to believe is to know the value of a nurturing heart. nurturing मतलब growing, ओके, जिससे हमको बहुत सारे वैल्यूज हमारे बड़े दिए रहते हैं, हमारे पेरेंट्स ने दिया रहता है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने दिया रहता है, और वो वैल्यूज लेके हम आगे हर दिन जीते हैं। हमारे जो संस्कार होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, रिस्पेक्ट करने के संस्कार होते हैं, हम मिलजुल के रहने के जो संस्कार हमको घर से मिलते हैं, वो हमको बड़ों से ही मिलते हैं। द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड्स आईज, इनोसेंस ऑफ चाइल्ड मतलब बच्चे की जो मासूमियत होती है आंखों की, किस तरीके से होती है, उसके आंखों में कितनी चमक होती है, उसके आंखों में कितने सपने होते हैं। कभी देखा है बच्चों को, छोटे बच्चे को बोलते हैं कि आई विल बिकम दिस सुपरस्टार, आई विल बिकम द सुपर हीरो, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, उसके कितने बड़े बड़े हाई ड्रीम्स होते हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड, द ब्यूटी ऑफ द एजिंग हैंड मतलब हर दिन हम ग्रो होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है और उसको सब सिखाया जाता है, वो माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, उसको दुनिया में कुछ नहीं मालूम रहता है, बट वंस ही स्टार्ट्स growing, once he comes into this world, he is in his parents' house. वो अपने माँ बाप के पास रहता है, भाई बहनों के पास रहता है, और माँ बाप और भाई बहन ही उसको नर्चर करते हैं, मतलब उसमें वो संस्कार सिखाते हैं, उसको जीना सिखाते हैं, उसको अच्छाइयाँ सिखाते हैं, और किस तरीके से सबके साथ प्यार से रहना, बात करना, ये सब हमारे संस्कार में आता है, ये वो सिखाते हैं। और वो नर्चरिंग माइंड्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स जो है, हमारे पेरेंट्स जो है, वो भी हमारे फैमिली मेंबर्स जो है, उनका सबका सपोर्ट होता है, उनका करेज होता है, जो आज हमको इतने बड़े बनाए हैं। तो बचपन से हमने सीखा नहीं है, हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन उन्हीं से हम सीखते हैं। दैट इज कॉल्ड नर्चरिंग माइंड्स। The innocence of a child's eyes, किस तरीके से उसकी मासूमियत होती है आंखों की, और फिर वो धीरे धीरे से रोज ग्रो होता है, मतलब बड़ा होने लगता है, और बड़ा होते होते उसके ड्रीम्स
और वो बहुत सारी चीजें सीखने लगता है। एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड, ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड मतलब जिस तरीके से रोज आगे रोज दिन निकलते वैसे हम ग्रो होते रहते हैं और वो हर ग्रोथ से हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव रहता है। हर दिन हम कुछ नया नया सीखते हैं। जब बेबीज होते हैं और वो बेबीज को देखो शुरुआत में उनको फीडिंग करना पड़ता है, फीडिंग मतलब उसको मम्मी खाना खिलाती है, लेकिन वो जैसे बड़ा होता है तो मम्मी उसको सिखाती है कि खाना कैसे खाया जाता है। तो या तो वो स्पून से या तो वो हाथ से, और वो किस तरीके से प्लेट रखा जाता है, कैसे खाना बाहर नहीं गिरना चाहिए, दैट इज कॉल्ड टेबल मैनर्स, एटिकेट्स। हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो उसको किस तरीके से रिस्पेक्ट से बात करना है, क्या करना है, ये सब वो धीरे धीरे से सीखता है। तो वो जिंदगी की ब्यूटी है। दैट इज दैट द पोएट सेज दैट दिस इज द लाइफ एंड इट इज द ब्यूटी ऑफ दिस व्हाट द चाइल्ड ग्रोज विद हिज ड्रीम्स एंड बिलीव्स। और ये हमको भूलना नहीं चाहिए कि इन लोगों ने हमारे लिए ये सब कुछ दिया है, उनकी वजह से आज हम अच्छे ह्यूमन बींग्स बन सकते हैं। For it's true their teachings we learn to love, सिर्फ उन्हीं की वजह से हम सबके साथ में प्यार से रहना सीखते हैं, सबसे प्यार से रहना, सबसे केयरिंग से रहना। Because of their teachings we learn to love, that means we care। जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं वैसे हम करते हैं। हमको बचपन में वही सिखाया गया कि मम्मी से अच्छे से बात करो, ग्रैंड पेरेंट्स से अच्छे से बात करो, प्यार से रहो, शेयरिंग करो, केयरिंग करो, लविंग से रहो, कोऑपरेशन करो, अंडरस्टैंड करो, रिस्पेक्ट करो। जैसे कि पैर छूना भी इज लाइक यू नो कि गिविंग रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स। तो ये सब संस्कार हमको अपने बड़ों से मिलते हैं और ये हमारी जिंदगी को बनाने के लिए, हमको अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए इन्हीं का हाथ होता है। तो हम ये कभी नहीं भूल सकते कि these are the people who value so much importance in our life। इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि उनको ही हमको बताते हैं कि बिलीव इन योरसेल्फ, उन्होंने ही हमको सिखाया है और यही टीचिंग से हम अपनी जिंदगी को सेटअप करते हैं। So in this way we have completed third paragraph. Now what the poet is trying to say, to believe is to find the strength। बिलीव, अपने आप में बिलीव करना, अपने आप में एक हिम्मत रख के अपने आप को समझना, वो एक करेज है, एक स्ट्रेंथ है, एक ताकत है। एंड करेज दैट लाइज विद इन अस, और वही ताकत हमारे में होती है। हम वो किसी से ले नहीं सकते, हमको कोई भी नहीं दे सकता है, हमको सिर्फ एडवाइस दे सकता है, लेकिन करना तो हमको ही है। तो वो हिम्मत कहाँ से आती है? हमारे अंदर से, हमारे खुद के मन से, हमारी हिम्मत से आती है। हम अपना माइंड को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, हमारे हार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तब जाके हम वो करेज को हम आगे बढ़ जाते हैं, स्टेप लेते हैं। हम डरते नहीं हैं वो, क्योंकि हमारे अंदर ही बिलीव होता है कि अरे हाँ मैं कर सकता हूँ, अरे मैं ये जैसे कि अगर मैथ्स अगर डिफिकल्ट किसी को लग रहा है तो इफ यू प्रैक्टिस, यू से मैं 3 बार प्रैक्टिस करूंगा और मुझे आ जाएगा, तो मैं कर सकता हूँ। ये कर सकता हूँ जो है वो हमारे माइंड और हार्ट से आता है, वो हमारा करेज है। तो वो करेज हमारे में तभी आएगा if we believe in ourselves। तो poet is again and again saying that you believe in yourself, that you can achieve everything and every dream will come true। To believe is to find the strength and courage that lies within us। हमारे में जो हिम्मत है वो हमारी हिम्मत होती है, हमको कोई अपनी हिम्मत नहीं देता है। When it is time to pick up the pieces and begin again। Pick up pieces मतलब return to normal after a shock or disaster। Now this is very good paragraph। ये बहुत ही motivational paragraph है। To believe is to find the strength and courage that lies within us। When it is time to pick up the pieces that begin, pick up the pieces again मतलब for example, एक example देती हूँ छोटा सा। समझो कि हाथ से ग्लास टूट जाता है तो वो छोटे छोटे पीसेस हम उठा लेते हैं, है ना, फिर वो जगह को साफ कर देते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम ग्लास को हैंडल करते वक्त हम बहुत सोच समझ के करते हैं। वी नो इट्स मेड ऑफ ग्लास, ये टूट सकता है, मेरी पहली गलती हुई थी, तो अब मुझे इसको केयरफुल रहना है। ओके, now here the poet is comparing something to his pieces। इसका मतलब first of all what he says, ये जो हिम्मत होती है ना हमको फेस करने की, वो हमारे विदिन होती है, ये हमारी खुद की हिम्मत होती है, हमारे में वो खुद से आती है। एंड he says जब हमको कोई शॉक लगता है,
जब हमारे साथ में कुछ ट्रेजेडीज होती है, जब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है कि अचानक से शॉकिंग लगता है कि अरे ये अचानक से मेरे साथ कैसे हो गया, डिजास्टर्स होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स अचानक से आ जाते हैं जो हमने कभी भी लाइफ में सोचा नहीं था, और वो जब आ जाते हैं तो इंसान को बहुत बड़ा शॉक लगता है। वी फील वेरी शॉक, हम डिप्रेस हो जाते हैं, वेरी सैड हो जाते हैं, और एक वक्त ऐसा लगता है कि अरे ये मेरे साथ ही क्यों होता है और ये ऐसा क्यों हुआ, तो हम वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे टाइम पे द पोएट इज सेइंग, ऐसे ये डिजास्टर होते हैं तो भी हम वहां पर हिम्मत से काम लेते हैं, हमारी हिम्मत होती है, हम वो ओवरकम करते हैं, हम फेस करते हैं वो प्रॉब्लम्स, वी फेस दोस प्रॉब्लम्स, वी ओवरकम, पिक अप द पीसेस, मतलब हम वही तकलीफ से गुजरते हैं, हम वो परेशानी को फेस करते हैं। आज भी हम जो ये लॉकडाउन, ये कोविड-19 का जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसको भी तो हमने फेस किया है बहुत सारा, अभी भी हम फेस कर रहे हैं। वो कॉज क्या है, वो हमारी हिम्मत है, बिकॉज वी आर बिलीविंग दैट वन डे दिस विल गो अवे एंड आवर लाइफ विल कम इन अ प्रॉपर सिचुएशन। हम वापस आमने सामने बैठ के पढ़ेंगे, हम वापस आमने सामने मिल के हंस खेल के हम स्टडी करेंगे, तो ये हमारा बिलीव है। तो वैसे ही द पोएट इज सेइंग, अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो प्रॉब्लम्स को हम हिम्मत से उसको फेस करने का और फेस करेंगे एंड वी कैन डू इट, और वापस से हमारी लाइफ को ऐसे ही खुशियों से भर देंगे, हम अपनी लाइफ को वापस से वही नॉर्मल सिचुएशन में लाएंगे। सो इन दिस वे, ये बहुत ही मोटिवेशनल पैराग्राफ है। इन दिस वे द पोएट इज सेइंग, आफ्टर एनी डिजास्टर, एनी शॉकिंग्स, व्हेन योर हार्ट ब्रेक्स, यू शुड नॉट बी डिसहार्टेड। हमको होप को भूलना नहीं चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वी हैव टू ऑलवेज कीप द होप एंड वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्फ कि हाँ, ये प्रॉब्लम मैं फेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं मेरी लाइफ को वापस से खुशियों से भर सकती हूँ, नॉर्मल लास्ट। To believe is to find the strength and courage that lies within us when it is time to pick up the pieces and begin again. वापस से प्रॉब्लम्स को खत्म करना और वापस से अपनी जिंदगी को अपने न्यू ट्रैक से, न्यू बिगिनिंग से स्टार्ट करना। To believe is to know that we are never alone. मतलब ये टाइम है कि ये सोचना कि हम अकेले नहीं हैं। We are not alone. That life is a gift. जिंदगी एक तोहफा है। बहुत ही अच्छी लाइन है, हमेशा याद रखना, लाइफ इज अ गिफ्ट। जिंदगी मिलना एक तोहफा है, बहुत बड़ा एक गिफ्ट है। जिंदगी को खत्म नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम सबके लाइफ में आते हैं, लेकिन हमको डिसहार्टेंड नहीं होना चाहिए, कोई भी ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेना चाहिए, बिकॉज द प्रॉब्लम विल नॉट स्टे फॉर लॉन्गर, प्रॉब्लम्स विल नॉट स्टे विद अस। हमारे साथ में प्रॉब्लम्स हमेशा नहीं रहेंगे। प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमारे में है, हम हिम्मत से उसका फेस करेंगे, करेजियसली करेंगे, बिकॉज वी बिलीव इन आवरसेल्फ। हमको हिम्मत है, हम अपने आप पे भरोसा रखते हैं। इसके लिए जिंदगी जो है, हमारी लाइफ जो है, वो बहुत ही कीमती है, वो उसको बहुत ही अच्छे से गुजारना है, बहुत ही खुशी से, बहुत ही स्ट्रांगली। स्ट्रगल्स तो लाइफ में है, तो स्ट्रगल को फेस करके हमको अपनी लाइफ को अच्छी बनानी है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट लाइफ इज अ गिफ्ट। द पॉइंट से नाउ दिस इज द टाइम टू बिलीव इन आवरसेल्फ दैट वी आर नॉट अलोन। हम अकेले नहीं हैं, हम अपने आप को, हमारे में वो हिम्मत है, हमारे में वो फीलिंग्स है, हमारे में वो डिटर्मिनेशन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एवरीथिंग वी हैव एंड वी विल अचीव इट। हमारे ड्रीम्स भी पूरे करने के लिए हमारे में वो हिम्मत है। दैट लाइफ इज अ गिफ्ट, जिंदगी एक तोहफा है, तो उसको हमेशा अच्छे से रखना है। यू शुड नेवर गो इन अ रॉन्ग डायरेक्शंस, यू शुड नेवर इंडल्ज इन एनी अदर एक्टिविटीज, रॉन्ग एक्टिविटीज। कोई गलत लाइन पे नहीं जाना चाहिए, गलत लाइन पे जाने से हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। हमारी लाइफ एक बार मिलती है और बहुत ही कीमती लाइफ होती है, तो हमको वो बहुत अच्छे से गुजारनी है। सो यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन अ राइट वे, सही रास्ते पे चलो, अवॉइड बैड कंपनी, बुरी कंपनी नहीं रखो, कोई भी गलत चीज़ें नहीं करो जो पेरेंट्स को हर्ट हो, सोसाइटी के लिए हर्ट हो, तो अपनी ज़िंदगी एज अ गुड ह्यूमन बीइंग्स बनाना है। दैट लाइफ इज अ गिफ्ट एंड दिस इज अ टाइम टू चेरिश इट। और ज़िंदगी तोहफा है, एक तोहफा है,
एक गिफ्ट है और ये टाइम है हम जिंदगी को एंजॉय करें, हम लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करें। सो यू हैव टू चेरिश इट, हमेशा इस लाइफ को संभाल के रखो, बहुत ही अच्छे से संभाल के रखना है कि इस तरीके से अच्छे कर्म करके, सबके साथ प्यार से, केयरिंग से, अच्छे से रह के और अपने संस्कारों के साथ हमको अपने ड्रीम्स को अचीव करके, गलत रास्तों पे नहीं जाके, गलत चीजों में इंडल्ज नहीं होके हमको अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से बिताना है। ओके, बाय फेसिंग द प्रॉब्लम्स वेरी करेजियसली। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, to believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen, and all our hopes and dreams are within reach if only we believe. Now the poet is saying, to believe is to know that wonderful surprises are just waiting. अभी हमारे लाइफ में और सरप्राइजेस है, बहुत सारे सरप्राइजेस, अच्छे सरप्राइजेस, बियॉन्ड द लिमिट सरप्राइजेस, जो हमने कभी सोचा नहीं था वो हो जाएगा हमारी लाइफ में। तो द पोएट इज सेइंग सरप्राइजेस बहुत सारे हैं। सरप्राइज सबको अच्छा लगता है ना, बहुत खुशी देता है, बहुत अच्छे सरप्राइजेस होते हैं और वो सरप्राइजेस आज भी हमारा वेट कर रहे हैं। तो हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से बनाओ और वो लाइफ में हमारे सरप्राइजेस आज भी हमारा वेट कर रहे हैं जो हमको बहुत ही अच्छा मिलेगा। एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच, हमारे उम्मीदें जो हमने की है और हमारे जो सपने हमने देखे हैं जो अचीव करने के, वो बिल्कुल सही होंगे, वो बिल्कुल अचीव होंगे। हमारे में वो जज्बा है अचीव करने का, तो वो हमारा वेट कर रहे हैं, हमारे ड्रीम्स हमारा वेट कर रहे हैं कि हम उसको कब अचीव करें। तो ये हमारी हिम्मत है। तो द पोएट इज सेइंग बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप की उम्मीदें हमेशा जागरूक रखो, अवेयर रखो, उसको जिंदा रखो। डू नॉट लूज होप इन एनी सिचुएशन बिकॉज लूजिंग होप मीन्स लूजिंग लाइफ। सो डू नॉट लीव होप। होप्स हमारे सही होंगे, हम हमारे खरे उतरेंगे और हमारे लिए हमारे जो ड्रीम्स है वो हम छूने तक के पास आएंगे, मतलब हम अचीव करेंगे, हमारे ड्रीम्स पूरे होके रहेंगे। तो इन दिस वे, और ये कब होगा? ओनली इफ we can achieve only if we believe in ourselves. That's why the poet is saying a time to believe. आज वो वक्त है हम अपने आप को बिलीव करने का कि हम ये सब अचीव कर सकते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप में बिलीव रखेंगे, अपने आप में कॉन्फिडेंट रखेंगे, अपने आप में हिम्मत रखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम बहुत हिम्मत से हम प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द पोएम अ टाइम टू बिलीव। सो चिल्ड्रन, यू हैव टू राइट द सेंट्रल आइडिया appreciation on this poem. Hope you have understood the poem. Again I am telling you the poem, the message the poem gives, that to believe in ourselves, and just it's a motivational poem and it's a very strong poem. That's why it is in first unit. हमको वो स्ट्रांगली आगे बढ़ने के लिए हमारी ये फर्स्ट यूनिट में ये पोएम डाली है। तो बहुत अच्छे से रीड करो, बहुत अच्छी पोएम है, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बनाओ, अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रांग रखो, बिलीव इन योरसेल्फ, be confident, because life is a gift, you cherish it, you be happy. Okay, so in this way we end our poem. Okay, just read the poem, revise it, write once in your rough book, and have a nice day. Thank you so much. See you again.